Assalamu alaikum. This is your book D1 and this is the solution exercise 5C basic level. These are the word problems related to your linear equations and inequalities. So this is question number 1. When loaded with bricks, a lorry has a mass of 11,600 kg. When loaded with bricks means bricks and lorry. If you will add both of the masses of bricks and lorry, ठीक है, let me make the lorry over there, ठीक है, और इसमें क्या रखी हुई है, bricks रखी हुई है. बहुत अच्छे से पहले इसको समझ लीजिएगा, then you will be able to solve. Okay, so these are the bricks. अब अगर मैं इसके mass को और इसके mass को दोनों को मिला लूँ तो that is equal to 11,600 kg. Okay, 11,600 kg, the mass of the bricks plus mass of the lorry. Now if the mass of the bricks is 3 times, अगर bricks के mass को कंसिडर किया जाएगा तो that would be 3 times that of the empty lorry. यानी empty lorry के mass को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 times कर दूँ, 3 गुना कर दूँ, तो that would be the mass of bricks. It means that bricks का mass ज़्यादा है और empty lorry का mass कम है. ठीक है, तो empty lorry के mass को मैं 3 times कर दूँ तो bricks का mass निकल आएगा. तो let us suppose the mass of empty lorry is x and then यहाँ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है. लेने को आप ब्रिक्स का मैस भी x ले सकते हो. अगर आप ब्रिक्स का मैस x ले लेते हो तो एम्प्टी लॉरी का मैस जो है वो x/3 हो जाएगा. व्हाट डज इट मीन बाय x/3? यानी जितना ब्रिक्स का मैस है उसका उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए, यानी कम कर लिया जाए, 1/3 कर लिया जाए तो एम्प्टी लॉरी का मैस आ जाएगा. ओके, यू कैन टेक लाइक दिस ऑल्सो. और अगर आप एम्प्टी लॉरी के मैस को x सपोज कर लेते हो तो x 3x would be the mass of the brick. Okay, लिखा हुआ क्या है? If the mass of the bricks is 3 times that of the empty lorry, यानी empty lorry का जितना भी mass है उससे जो bricks का mass है वो 3 times ज़्यादा होगा. तो whatever you want, अगर आप bricks के mass को x ले लेते हो तो empty lorry का mass हो जाएगा x/3, यानी 3 times वो कम हो जाएगा. और अगर आप ब्रिक्स के मैस को 3x ले लेते हो तो एम्प्टी लॉरी का मैस जो है वो x होगा. ठीक है, दैट वुड बी द रिलेशन. तो वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक. लेट मी रिमूव फर्स्ट. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. ब्रिक्स का मैस जो है वो 3x है और एम्प्टी लॉरी का मैस x है. तो लेट अस सपोज लेट द मैस ऑफ एम्प्टी लॉरी equals x and the mass of the bricks equals 3 times of the mass of empty lorry. Okay, so and if you will add both of them, we need to find out first. Let's see, we need to find out the mass of the bricks. हमें bricks का mass निकालना है. means we need to find out the value of 3x. हमें किस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है? हमें 3x की वैल्यू निकालनी है. ओके, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि हमें वैल्यू किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है. सिर्फ x की नहीं करनी, 3x की भी करनी है. ना, लेट मी मेक द इक्वेशन x प्लस 3x, यानी अगर मैं एम्प्टी लॉरी के मैस को और ब्रिक्स के मैस को ऐड कर दूं तो टोटल मैस ऑफ द लॉरी विद ब्रिक्स आ जाएगा, विच इज़ 11,600. ओके, नाउ दैट वुड बी 4x equals 11,600. ओके, एंड नाउ x equals 2,900. कैसे? आप इसको x से डिवाइड, लेट मी डू इट. सो दैट इज 11,600 डिवाइडेड बाय 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 9s are 36, 0 0
that is x is equal to 2900 kg. What is this x? X is the mass of lorry, empty lorry, and we are interested in the mass of bricks, इसलिए कि यहाँ क्या पूछा गया है, mass of bricks आपको बताना है. तो mass of bricks बताने के लिए what will you do? You will find out value of 3x. This is mass of bricks. ठीक है, तो आप यहाँ रख देंगे 2900 8,700 mass of bricks. Okay, so that's all for the question number 1. Put it inside a box. Now let's get started. Question number 2. The sum of 4 consecutive odd numbers is 56. Find the greatest of the 4 numbers. It means that you have got 4 consecutive odd numbers. Okay, so if I will write here odd numbers, suppose I am going to start from 3. Okay, what would be the second consecutive odd number? That would be 5, and the next 7, and the next 9. Okay, और इसी तरह consecutive odd numbers बढ़ते चले जाएंगे. Question is that कि ये जितने भी आपके पास 1 भी लिख देते हैं, जितने भी आपके पास consecutive odd numbers हैं, इनमें से इस पूरी सीरीज में से कहीं से भी अगर मैं 4 consecutive numbers उठा लूँ, consecutive का मतलब बिल तरतीब, ठीक है, एक ही ऑर्डर में जैसे ये चल रहे हैं, इन्हीं में से कोई भी 4 अगर मैं नंबर्स उठा लूँ, 9 के बाद 11 है, फिर 13 है, कोई भी 4 नंबर्स उठाऊँ और उनका जो सम है अगर वो 56 निकले, तो वी नीड टू टेल दैट व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा. ठीक है, तो अब इसमें से कोई भी नंबर, अगर मैं ये 4 उठाती हूँ इसका आंसर कुछ और आएगा, अगर मैं ये वाले 4 उठाती हूँ इसका आंसर कुछ और आएगा. Likewise these 4 that would be having the sum of the numbers would be different. तो मुख्तलिफ 4 numbers के मुख्तलिफ आंसर्स आएंगे. मुझे वो 4 numbers consecutive इसमें से निकालने हैं जिनको अगर आप सम करें तो आंसर would be 56. Okay, let's get started. Let the smallest odd number be, let the smallest, सबसे छोटा नंबर जो है नंबर बी एक्स, सबसे छोटा नंबर जो है चारों में से, ठीक है, कोई से भी 4 नंबरों में जो सबसे छोटा नंबर है, वी हैव सपोज्ड इट एज एक्स. ओके, द नेक्स्ट ऑड नंबर, नाउ आई विल राइट द नेक्स्ट ऑड नंबर. इक्वल्स एक्स प्लस. अब ज़रा सोचिए कि अगर मैं कोई भी ऑड नंबर यहाँ x की जगह लूँ, 7 ले लेती हूँ, तो हाउ विल यू मेक द नेक्स्ट ऑड नंबर, दूसरा नंबर आप किस तरह बनाओगे. ठीक है, 7 के बाद दूसरा नंबर क्या आता है, 9 आता है. अगर मैं x सपोज कर लूँ 7 को, तो हाउ मेनी नंबर्स वुड बी एडेड इन 7 टू मेक 9. सो आई विल एड, I will add 7 plus 2. I will add 2 in 7 to get 9. Okay, and the next 11, how would I make 11? I will add in 7 4. Okay, so when you will add 4 in 7, that would be 11, and then next if you will add 6 in 7, that would be 13. Okay, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट जो आपका नंबर होगा वो 7 ही होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जब आप 4 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो ये आंसर वुड बी 56. कीप इट इन योर माइंड. ओके, तो यहाँ हर जगह मैं कितने का इसमें एडिशन कर रही हूँ, +2, देन 4, देन 6. सो नेक्स्ट नंबर अगर हम x जो है वो फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऑड नंबर ले लेते हैं, तो इसमें अगर आप +2 कर लोगे तो दैट वुड बी द नेक्स्ट odd number. Okay, and then the next odd number, उसके बाद कौन सा वाला नंबर होगा, then the next odd number.
x plus 4. Okay, and the greatest odd number. Now I will add 6 in it. Okay, these are the numbers, and we need to find out the greatest of 4 numbers. It means that we need to find out the value of x plus 6. Okay, now I will write here x plus 2 plus x plus 4, because the sum of all these numbers equals what? 4 consecutive, so x plus 6 equals 56. Okay, and now I will add all of the x. पहले आप brackets open करोगे, तमाम x को आप add करोगे, that would be 4x. I have done it directly. 2 plus 4 plus 6, that would be 12. Okay, equals 56, and 4x equals 56 minus 12, and that would be, let me write over here, 4x equals 44, and x equals 44 upon 4 equals 11. Okay, so x is equal to 11, which is the smallest number. यहाँ आपको नजर आ रहा है smallest number 11 है, and if we need to find out the greatest, यहाँ direct भी आप बता सकते हो. 11 के बाद next odd number कौन सा है? That is 13, and next 15, and next 17. So मैं यहाँ 17 लिख देती हूँ. ठीक है. Now how will you show that x plus 6, which is the greatest number? अगर आप 11 के अंदर 11 in 6, that would be 17. ठीक है. तमाम नंबर्स बताने होते. अगर यहाँ क्वेश्चन होता फाइंड द वैल्यूज ऑफ 4 नंबर्स, तमाम नंबर्स आपने बताने होते. व्हाट आर दोज 4 नंबर्स? तो आप x क्या कहते हैं? x आपका निकल आया है 11. सेकंड क्या हो जाता? यहाँ जब आप 11 में 2 प्लस करते, दैट इज 13. 11 में 4 प्लस करते 15, और 11 में 6 प्लस करते 17. ओके, तो दैट इज द आंसर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. यहाँ आप लिख देंगे ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, एंड पुट इट इनसाइड द बॉक्स. दिस इज योर आंसर. Now this is question number 3. Amira is 4 years older than Priya. There are 3 girls, Amira, Priya and Shirley. Okay, there are 3 girls. Let me write over here. Amira, A for Amira, P for Priya and S for Shirley. Okay, Amira is 4 years older than Priya. यानी प्रिया की जो भी एज है अमीरा उससे 4 years older है. It means that whatever is the age of Priya, if you will add 4 in it, that would be the age of Amira. दोबारा से समझिए, प्रिया की जो भी एज है उसमें अगर मैं 4 years को ऐड कर लेती हूँ तो that would be the age of Amira. ठीक है. And Shirley, the third girl, is 2 years younger than, okay, 2 years younger than प्रिया. यानी उसकी जो भी एज प्रिया की है, अगर मैं उसमें से 2 माइनस कर देती हूँ, यानी शिरले जो है वो 2 साल छोटी है प्रिया से. ठीक है, 2 years younger than. तो जितनी भी प्रिया की एज है अगर मैं उसमें से 2 years लेस कर देती हूँ तो दैट वुड बी द एज ऑफ शिरले. ओके, तो दोनों तरफ से जब हम बात करते हैं तो आपका जो रिलेशन जोड़ा जा रहा है वो प्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है. एक प्रिया से बड़ी हैं और एक प्रिया से छोटी हैं. ठीक है, अमीरा इज ओल्डर देन एंड शिरले इज यंगर देन. ठीक है, तो मैं प्रिया को क्या सपोज कर लूँगी? x. ओके, अगर मैं प्रिया को x सपोज कर लेती हूँ तो x plus 4 would be the age of Amira. Let me write here. If I will suppose x is the age of Priya, तो अमीरा जो है वो 2 साल बड़ी है, so age of Amira would be x plus 4 years बड़ी है,
that would be x plus 4, and Shirley, she is 2 years younger than Priya, so I will write here x minus 2. ठीक है, यानी अगर सपोज प्रिया की एज सपोज दिस इज 7 years, तो what would be the age of Amira at that moment? 7 plus 4. And what would be the age of Shirley? 7 minus 2. तो यहाँ इनकी एज जो है वो 5 हो जाती है, और अगर इसमें मैं प्लस कर देती हूँ 11 हो जाती है. ठीक है, ये मैंने एक सपोजिशन आपको दिखाई है कि अगर ऐसा होगा इन केस कि 7 years प्रिया हो तो उनसे 4 years ज़्यादा अमीरा की एज 11 हो जाएगी, इनकी 5. ये जस्ट सपोजिशन था, यानी आपको समझाने के लिए मैंने सपोज करके बताया है. तो लेट मी रिमूव इट. ठीक है, अभी हम निकालने जा रहे हैं कि व्हाट वुड बी द एजेस. ओके, सो लेट Priya's age be x years, okay, and Amira's age be x plus 4, okay, and Shirley's age x minus 2. Okay, if the sum of, we need to find out the sum of their ages is 47. If I will add this and this, then the sum would be equal to 47. हम इसको पढ़ते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं. फाइंड दियर respective ages. We need to find out their respective ages. Okay, we need to find out all of the ages. यानी मुझे ये भी मालूम करना है, मुझे ये भी मालूम करना है, और मुझे ये भी मालूम करना है. Okay, so let's get started. It's given in the question. I will add all of the ages, x plus 4 plus x minus 2, and that would be equal to 47. Okay, that is 47. So here you can see that x, x and x, there are 3x, okay, and plus 4 and minus 2, what it would be? Plus 2 equal 47, and 3x equals 47 minus 2, that would be 45 divided by 3. This is x, and x equals 3 5s are 15 years. This is the age of Priya. Okay, we have found out the age of Priya, and now we are going to find out the age of Amira. Okay, x plus 4, this is 15 plus 4 equals 19 years, 4 years elder than Priya and 2 years younger than Priya. This is Shirley's age. This is 15 minus 2, that is 13 years. Okay, तो यहाँ आप ये लिख देंगे, and the ages, the respective ages are Priya equals 15 years, Amira 19 years, and Shirley 13 years. These are the respective ages. That's all for this question. Now this is question number 4. Let's read the question first. The sum of two numbers. We are talking about two numbers. अगर आप इसको साथ के साथ सर्कल कर लेते हो, इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है. ठीक है, सम मालूम करना है मुझे. ठीक है, ऑफ टू नंबर्स. देयर आर टू नंबर्स, वन ऑफ विच इज 2/3. उनमें से एक जो है वो 2/3 है ऑफ द अदर. इस पे आपने बहुत गौर करना है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है,
इज 45. दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हो, देयर आर टू नंबर्स, कोई से दो नंबर्स हैं, अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर आता है 45. ओके, और ये नंबर्स किस तरह के होने चाहिए कि यहाँ जो आपके पास फर्स्ट नंबर है उसका जो सेकंड वाला, या तो सेकंड को लो या फर्स्ट को लो, वो 2/3 ऑफ द नंबर है, या तो यहाँ 2/3 आ जाएगा और या फिर यहाँ 2/3 आ जाएगा। यानी एक नंबर जो है फर्स्ट सेकंड नंबर, चलें कर लें, जो सेकंड नंबर है अगर उसका आप 2/3 ले लें तो दूसरा नंबर बनेगा। ओके, दिस इज फर्स्ट नंबर सपोज, और जो दूसरा नंबर बनेगा वो 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर है, और दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हो तो 45 आ जाता है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को चाहे आप इधर रखें चाहे उधर रखें, दैट वुड बी द सेम, बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ यू रिमेंबर, क्या थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के सम आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, इफ यू विल चेंज द ऑर्डर देयर वुड बी नो चेंज इन द आंसर। ओके, तो ये आपके पास आ गया। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मैंने आपसे कहा 2/3 ऑफ द अदर नंबर, ऑफ द अदर नंबर का मतलब, और अगर मैं ऑफ द अदर इस्तेमाल ना करूं, एक बार इस्तेमाल करूं एक दफ़ा ना करूं, तो आई एम टेलिंग यू बोथ ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, फर्स्ट वाला जब हम इसको यूज करते हैं, लेट मी रिमूव इट। ओके, देखिए, लेट द ग्रेटर नंबर बी, यकीनन ये जो 2/3 होगा ये नंबर छोटा होगा। 2/3 का मतलब है कि जो नंबर था उसके 3 पार्ट्स करके उसमें से 2 पार्ट्स निकाले, तो वो क्या होगा, 100% 1 से कम होगा। ठीक है, यानी जो भी नंबर था आपका, सपोज दिस इज द नंबर, ओके, ओरिजिनल नंबर जो फर्स्ट नंबर था, इसके 2 पार्ट्स कर दिए गए पूरे नंबर के, और उसमें से 3 पार्ट्स करने के बाद उसमें से 2 पार्ट्स निकाल लिए गए, तो ये 1 होल से छोटा हो गया। दिस इज 1 होल, द होल नंबर। ठीक है, और उसमें से 3 पार्ट्स करके अगर आप 2 निकाल लेंगे तो ये जो 2 पार्ट्स हैं ये 1 होल से छोटे हैं, तो 2/3 नंबर जो होगा वो छोटा होगा, और दिस इज द होल नंबर, दिस इज 2/3 नंबर। ओके, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, ग्रेटर नंबर जो है, जो पूरा नंबर है, जो होल नंबर है, विच इज x, एंड द स्मॉलर नंबर, द स्मॉलर number equals 2/3 of the other. It's written of the other. Okay, of the other means 2/3 of x. Is it clear? And the sum is 45. Let me write here, x plus 2/3 of x equal 45. ठीक है, now you will solve this equation to get the value of x, and then you will find the value of 2/3 of x. क्यों, इसलिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, find the smaller number, and the smaller number is 2/3 of x. Let me solve it. नीचे 3 आ रहा है, 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, that would be 3 multiplied by x plus 3 multiplied by 2/3 of x equals 3 multiplied by 45. Okay, 3 will be cancelled, that is 3x plus 2x equals 135. Okay, that is 5x equals, that is 5x is equal to 135. Okay, and x equals x equals 135/5, which would be equal to 5 2s are 10, 5 7s are 35. So value of x is 27. Okay, it means that this is the greater number. यहाँ देखिए greater number x था. We have found out the value of x. Now we are going to find out the value of a smaller number. So what would be smaller number? Let me write here, a smaller number equals 2/3 of x. You can write it like this, 2/3 of x means 27, 3 9s are 27, 9 2s are 18. So the bigger number
will be x is equal to 27 and the smaller number will be equal to 18. Okay, 2 by 3 of x, this is 18. ये दोनों नंबर्स आपके पास आ गए. अब अगर आप 27 और 18 को प्लस कर लेते हो, 27 द बिगर नंबर एंड 18 टू थर्ड ऑफ 27 था ना, ये 2 by 3 ऑफ 27. 18 अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो दैट वुड बी इक्वल टू 7 2 14 15, 5 हो गया और यहाँ 1 हो गया है आपका, तो ये बन गया आपके पास 45. तो ये आपका प्रूफ भी हो गया कि आपका आंसर जो है वो ठीक है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4. अब हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे जहां मैंने आपको बताया था कि ऑफ द अदर अगर ये मौजूद नहीं है तो ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा. जी, तो इसको हम दूसरी तरह कैसे सॉल्व कर सकते हैं. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर. द सम ऑफ टू नंबर्स, वन ऑफ विच इज 2/3 ऑफ द अदर, वन ऑफ विच इज 2/3. अगर मैं यहाँ ऑफ द अदर ना लगाऊं, ठीक है, ऑफ द अदर लगाने पे क्या था, यहाँ देखिए इक्वेशन बनी हुई है. ऑफ द अदर का मतलब था कि 2 by 3 ऑफ द नंबर. ऑफ द नंबर का मतलब आप उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करोगे. यू विल राइट इट लाइक दिस, 2 by 3 ऑफ एक्स. ओके, अनदर नंबर वुड बी 2 by 3 ऑफ एक्स. एक्स आपका लगाना ज़रूरी है, ठीक है. लेकिन अगर यहाँ ऑफ द अदर नहीं लिखा हुआ और आपको लिख दिया गया वन ऑफ विच इज 2/3, उनमें से एक नंबर जो है वो खुद 2/3 है. 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर नहीं है, वो खुद ही 2/3 है. तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, द स्मॉलर नंबर 2/3. ठीक है, वो खुद का खुद ही 2/3 है. उसको आपने मल्टीप्लाई एक्स से नहीं करना है बिकॉज ऑफ द नंबर इज नॉट देयर. ठीक है, वो खुद ब खुद एक नंबर उसमें से 2/3 है. ठीक है, इज इट क्लियर. चलें, और यहाँ आपका क्वेश्चन फिर स्मॉलर नंबर नहीं बनेगा इसलिए कि स्मॉलर नंबर तो खुद ही 2/3 है. ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन बनेगा फाइंड द नंबर. ओके, फाइंड द नंबर. उसमें से एक नंबर आपका है 2/3, यहाँ से भी स्मॉलर काट दीजिए. द सेकेंड नंबर, द सेकेंड नंबर, और यहाँ पर भी ग्रेटर नहीं आएगा. ठीक है, लेट मी रिमूव एंड राइट इट अगेन. I will write it like this, let the number be, जो आप find out करने जा रहे हो, this is x, okay, and the next number be 2 by 3. okay, यहाँ कोई x नहीं लगा हुआ, आपको x की वैल्यू मालूम करनी है. okay, so how will you write it, x plus 2/3. No need to write 2/3 of x. Just you will write x plus 2/3 equals 45. देखने में तो लग रहा है कि ये बिल्कुल वैसे ही सेम है. पहला वाला क्या हमने लिखा था, x plus 2/3, x is equal to 45. देखने में तो इसमें और इसमें आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है. लेट्स सी द आंसर. x is equal to, I will multiply the whole equation by 3, जैसा कि अभी हमने पिछले मेथड में किया था, पिछले क्वेश्चन में किया था. 2 by 3, 3 multiplied by 45. okay, 3 will be cancelled. this is 3x plus 2 is equal to 135. okay, 135 minus 2, 135 minus 2, that would be x is equal to 133 upon 3. okay, and x is equal to, क्या लिख सकते हैं हम इसे, 3 4s are 12, 3 4s are 12. this is your answer. नेक्स्ट नंबर आपका क्या है, x आपका क्या निकलेगा, 44 whole 1 by 3. it means that you can write it like this, 44.333. ओके, ज़रा इसकी वैल्यू को देखिए, 44.333, और वहाँ आपका जो x का आंसर आया था वो 27 आया था इस जगह. ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन आप कर रहे थे x इज इक्वल टू 27. तो दोनों के आंसर्स में आप डिफरेंस देखिए. जब आप 2/3 ऐड करते हो और जब आप 2/3 ऑफ द अदर यानी ऑफ द नंबर ऐड करते हो तो देयर वुड बी द डिफरेंस
इन द आंसर्स ऑल्सो, ठीक है। तो इस पे बहुत ध्यान रखना है कि ऑफ द अदर आया हुआ है, ऑफ द नंबर आया हुआ है, तो यू विल मल्टीप्लाई 2/3 और अगर ये नहीं आया हुआ है, ठीक है, ऑफ द नंबर नहीं है, ओनली द 2/3 और एनी नंबर ओवर देयर, तो आप यहाँ x नहीं लिखेंगे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स गो टूवर्ड्स इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, एक नंबर लिया गया है एंड इट इज, इफ यू विल टेक 3 times ऑफ दैट नंबर, इट मीन्स दैट ट्रिपल्ड का मतलब होता है आप उसे 3x कर दो, इट गिव्स द सेम रिजल्ट, वो सेम रिजल्ट देता है आपको। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। व्हेन 28 इज एडेड टू इट, यानी अगर उसी नंबर में, इट का मतलब है x के अंदर, अगर मैं क्या ऐड कर दूं, 28 ऐड कर दूं, मीन्स x + 28, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई, इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड मीन्स 3x। ओके, लेट मी राइट फर्स्ट। So let's get it started. Let the number be x. Let the number be x, and what will you do? You will write it like this. If you will tripled the number, it means that triple of the number, thrice of the number, it means that 3 times of the number, tripled of the number be 3x, ओके, 3 टाइम्स कर दिया। और ये जो 3 टाइम्स ऑफ द नंबर है उसको हम इक्वेशन बना लेते हैं। 3x इक्वल्स किसके बराबर होगा, सेम रिजल्ट आएगा। सेम रिजल्ट का मतलब इसका जो आंसर आएगा, तो आंसर के लिए यहाँ इक्वल लगाएंगे 28 एडेड टू इट, x में अगर हम 28 को ऐड कर दें तो दोनों का आंसर, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड का आंसर जो है वो सेम आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू सॉल्व द इक्वेशन। It's gonna be 3x minus x कर लिया, हम इधर लेकर आ गए। This is 2x is equal to 28 and x equals 28 upon 2 ones are, and okay, तो x is equal to 14. Find the number. This is the number. X is equal to 14. Okay, the number is 14. This is your answer. Okay, let's get started. Question number 6. Let me read first. A travel agency is planning for a holiday for a group of people. कुछ लोग हैं जिनको ट्रैवल एजेंसी जो है वो प्लान कर रही है हॉलीडे पे ले जाने के लिए, ठीक है। माइंड में आप इसको जो है वो एक स्टोरी की तरह लीजिए। एवरी वर्ड प्रॉब्लम इज जस्ट लाइक अ स्टोरी, ठीक है। इसको इस तरह ले लीजिए कि सपोज यू आर गोइंग टू टेक सम पीपल फॉर अ हॉलीडे, ठीक है, आप प्लान कर रहे हो, तो द एजेंसी रिसीव्स कोटेशंस, जो आपकी एजेंसी है यानी आप खुद हो, वो कोटेशंस रिसीव करते हैं 2 कोच कंपनी से। तो यानी जो आप उसके लिए कन्वेंस इस्तेमाल कर रहे हो, कोचेस इस्तेमाल कर रहे हो, तो 2 डिफरेंट कंपनीज हैं, वो आपको कोटेशन वहाँ से मिलती हैं। माया एक्सप्रेस एक जो है उनमें से, उसका नाम है माया एक्सप्रेस, और दूसरी है ग्रेट हॉलीडेज़, ठीक है। 2 कंपनीज हैं, वो आपको जो है वो कोटेशन देती हैं कि आप हमारे साथ चलें, और ग्रेट हॉलीडेज़ कहती हैं हमारे साथ चलें। अब वो जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं वो आगे डिटेल है। माया एक्सप्रेस ऑफर्स या चार्जेस $15 फॉर ईच पर्सन, हर बंदे के लिए, यानी जितने भी बंदे आपके पास 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 50 हैं, हर बंदे के लिए ईच पर्सन के लिए $15 चार्ज करती है माया एक्सप्रेस। और जबकि ग्रेट हॉलीडेज़ कितना चार्ज करती है, चार्जेस अ फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट तो चार्ज करती है जो है $84, और एक्स्ट्रा ऑफ $12 पर पर्सन, हर बंदे के ऊपर $12 जो है वो चार्ज करती है। और फिर चार्ज करने के बाद उस पर 84 जो एक फिक्स्ड अमाउंट है उसको ऐड कर देती है, ठीक है। यानी हर बंदे पे आप $12 दोगे, चाहे वो 15 है, 20 है, 50 हैं, और उसके बाद प्लस 84 कर देंगे, यानी आपको $84 ज़्यादा देने होंगे। इफ़ द टोटल अमाउंट चार्ज्ड बाय ईच कंपनी, दोनों जो कंपनीज जो हैं वो जो टोटल उनका निकलता है वो सेम, देखने में तो देखिए सेम नहीं लग रहा है, ठीक है। वहाँ वो $15 चार्ज कर रही है, यहाँ वो $12 चार्ज कर रही है, ठीक है। और $12 चार्ज करने के बाद $84 उसमें ऐड करना होगा, ठीक है।
तो बज़ाहिर देखने में हमें समझ नहीं आ रहा कि दोनों सेम निकलेगा कि नहीं, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इफ़ द टोटल अमाउंट चार्ज्ड बाय ईच कंपनी इज़ द सेम, यानी दोनों इक्वल निकल रहे हैं. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन द हॉलीडे. वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल, कि टोटल कितने लोग जा रहे हैं. ठीक है, तो हम सपोज क्या करेंगे, लेट, जो चीज़ हमें पता नहीं है या जो चीज़ हम मालूम करने जा रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ पीपल गोइंग इक्वल्स एक्स. इसको हमने एक्स के इक्वल सपोज कर लिया. ठीक है, अब हम कैसे लिखेंगे, अब हम ऐसे लिखेंगे कि $15 फॉर ईच. हर बंदा, हर एक बंदा अगर $15 देता है तो टोटल बंदे कितने डॉलर्स उनके ऊपर बनेंगे, तो दैट वुड बी 15x. ओके, 15x. x नंबर ऑफ पीपल हैं, x इज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, और 15 हर बंदा देता है, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, वी विल मल्टीप्लाई 15 बाय x. ओके, एंड विल बी इक्वल टू, जितना आपको माया एक्सप्रेस चार्ज करेगी, ये माया एक्सप्रेस के चार्जेस हैं 15x, उतना ही इक्वल होगा जब आपको ग्रेट हॉलीडेज जितना चार्ज करेंगे. वो कितना चार्ज कर रहे हैं ईच पर्सन के लिए, वो 12 चार्ज कर रहे हैं. पर्सन नंबर ऑफ पीपल से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12 मल्टीप्लाइड बाय x, और इस पे एक फिक्स अमाउंट उन्होंने रखा है 84 का. और ये जो दोनों हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, तो ये क्या है, इक्वल है. इफ द टोटल अमाउंट चार्ज्ड बाय ईच कंपनी इज द सेम, सेम अमाउंट बन रहा है, तो आई विल पुट इक्वल साइन बिटवीन देम. ठीक है, and now I will solve this equation for x. 15x minus 12x is equal to 84. That is 3x equals 84 and x equals, so there would be total 28 people who are going for the holiday. Okay, तो ये number of people आ गया. तो यहाँ आप इसका आंसर लिख देंगे, there are 28 people, there are 28 people going on the holiday, going on the holiday. Okay, that's all for question number 6. Let's go towards question number 7. In a school, ठीक है, सिनेरियो क्या है कि एक स्कूल में द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले सॉकर, नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले सॉकर, जो सॉकर खेलते हैं, जो बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 3 टाइम्स हैं, एज मच एज मोर एज और एज मच एज, 3 टाइम्स ज़्यादा हैं एज द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन. ओके, बैडमिंटन नंबर ऑफ बॉयज़ को अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो वो नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले सॉकर निकल आते हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि बैडमिंटन कम बच्चे खेलते हैं, कम बॉयज़ खेलते हैं, और सॉकर ज़्यादा बॉयज़ खेलते हैं. और दोनों का रिलेशन क्या है कि जितने बैडमिंटन खेलने वाले हैं अगर उन्हें 3 टाइम्स कर दिया जाए, 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो दैट वुड बी इक्वल टू द बॉयज़ हु प्ले सॉकर. ठीक है, अच्छा जी, एज द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन, इफ 12 बॉयज़, यानी जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उसमें से अगर 12 बॉयज़ हु प्ले सॉकर, सॉकर खेलने वाले बच्चों में से अगर 12 बॉयज़ को वो क्या खेलने लग जाएं, बैडमिंटन खेलने लग जाएं, यानी उस टीम से निकल के बैडमिंटन टीम में चले जाएं, तो क्या होगा, द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले ईच ऑफ दीज स्पोर्ट्स वुड बी द सेम. यानी अगर यहाँ से 12 बॉयज़ कम हो जाएं सॉकर टीम में से और बैडमिंटन टीम में बढ़ जाएं 12 बॉयज़. ठीक है, एक तरफ से सब्ट्रैक्ट करना होगा, एक तरफ ऐड करना होगा, तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले हु वुड बी इन बोथ ऑफ द टीम्स, द नंबर ऑफ बॉयज़ विल बी इक्वल. इधर और उधर दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे. यहाँ हम इधर भी देख लेते हैं. अगर आपके पास एक सॉकर की टीम है
और एक बैडमिंटन की टीम है, ठीक है। अब यहाँ क्या था, सॉकर की टीम में जितने थे वो 3 टाइम्स ज़्यादा थे, किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन। तो बैडमिंटन की टीम में जितने हैं उनसे 3 टाइम्स ज़्यादा है सॉकर में। तो बैडमिंटन को अगर मैं x ले लेती हूँ, ठीक है, तो सॉकर की टीम में कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, ओके, 3 टाइम्स ज़्यादा है। अगर इन केस मैं सॉकर की टीम में x ले लेती हूँ, ये भी कर सकते हैं आप, तो बैडमिंटन की टीम में कितने हो जाएंगे, x/3 हो जाएंगे। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक, यू विल बी हैविंग द सेम आंसर, कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। तो आप इससे भी करके देख सकते हो, इससे भी करके देख सकते हो, ठीक है। सो लेट मी रिमूव इट। अब क्या करना है हमें, अब अगर सॉकर की टीम में से 12 बॉयज़ जो हैं वो रिमूव कर दिए जाएं, यानी वो यहाँ से सॉकर की टीम में से निकल कर कहाँ चले गए, बैडमिंटन की टीम में, ओके, ऐसे आपको इक्वेशन बनानी है। तो इन्होंने लास्ट में क्या कहा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ who play each of these sports would be the same. Same means दोनों तरफ जो आपके प्लेयर्स होंगे, नंबर ऑफ प्लेयर्स वुड बी इक्वल, ओके, तो दैट वुड बी द इक्वेशन। अब देखें इसको लिखना किस तरह है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले बैडमिंटन, ओके, इक्वल्स x, ठीक है, एंड देन नंबर ऑफ बॉयज who play soccer will be equal to 3 times of the boys who play badminton, okay। तो ये x आ गया, ये 3x आ गया, ठीक है। now you will make the equation like this, 3x number of boys who play soccer में से अगर 12 रिमूव कर दिया जाए और दूसरी तरफ नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले बैडमिंटन में 12 स्टूडेंट्स को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। पहले सॉकर ज़्यादा थे, सॉकर में खेलने वाले ज़्यादा थे, 3x थे, बैडमिंटन खेलने वाले कम थे, x थे, तो ये तो दोनों बराबर नहीं हो सकते थे, x और 3x। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सॉकर की टीम में से जो ज़्यादा थे उनमें से 12 कम कर दिए और बैडमिंटन की टीम में जो कम थे उसमें 12 ज़्यादा कर दिए। तो अब जो कॉम्बिनेशन आपस में बना वो इक्वल का है, ओके, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, हमें यहाँ मालूम क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले बैडमिंटन, इट मीन्स दैट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ओके। तो 3x minus x is equal to 12 plus 12, that is that is 24, okay, 2x, and x is equal to 24 divided by 2 equals x is equal to 12. So number of boys who play badminton is 12, okay. So there are 12 boys who play badminton. That's all. Now this is question number 8 in front of you. This is the sum of half. Sum of means addition of half of a number. एक नंबर लिया जाएगा, उसका हाफ लिया जाएगा. Suppose the number is x, half of the number is x upon 2. Keep it in your mind. जब भी हाफ की बात होगी x upon 2. हाफ ऑफ द नंबर इज, यानी उसको आपने हाफ कर लिया है. अगर 4 है तो हाफ ऑफ 4 इज 2. 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे. 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2. अगर द नंबर इज 6, हाफ ऑफ द नंबर इज 6 डिवाइडेड बाय 2 वुड बी इक्वल टू 3. ओके, तो ये x अपॉन 2 हो जाएगा. तो अगर आप सम कर दीजिए द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49, एक नंबर का हाफ करके उसको किस में ऐड कर दीजिए 49 में, तो आपका आंसर क्या आ जाता है 2 होल 1/4 ऑफ द नंबर. द सेम थिंग विच आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन, एनी वन ऑफ देम, कि आपका क्या आ गया है ये ऑफ द नंबर. इट मीन्स दैट 2 होल 1/4
क्या करेंगे ऑफ द नंबर के लिए, x से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, अगर ऑफ द नंबर नहीं होता तो हम सिर्फ लिखते 2 होल 1/4. ओके, सो लेट मी solve it. Let the number be x, let the number be x. Okay, and how will you make the equation? This is x upon 2. You can write it 1/2 of x. ऐसे भी लिख सकते हो. हाफ ऑफ x का मतलब 1/2 ऑफ x, और इसी को आप लिख सकते हो अगर x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो x अपॉन 2. बोथ आर सेम. हाफ ऑफ x का मतलब इधर ये भी हाफ ऑफ x है और यहाँ भी हाफ ऑफ x है. ठीक है, x अपॉन 2 अगर लिखेंगे वो भी हाफ ऑफ x है, और 1/2 ऑफ x लिखेंगे, 1/2 x लिखेंगे, दैट वुड ऑल्सो भी हाफ ऑफ x. ठीक है, यहाँ कोई भी वैल्यू रखो, आप उसको 2 से इधर भी डिवाइड कर रहे हो, इधर भी डिवाइड कर रहे हो, और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x डिवाइडेड बाई 2. ऑल दीज 3 आर सेम. ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट में यूज हो सकता है. x अपॉन 2 प्लस कितना प्लस किया गया है इसमें 49 एंड इज 2 होल 1/4 ऑफ द नंबर. इसका आंसर किसके बराबर आ रहा है? अगर आप दोनों का सम लो, क्या लिखा है? द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज 2 होल 1/4. इज का मतलब है इक्वल, इक्वल 2 होल 1/4 ऑफ द नंबर मीन्स यू विल पुट x ओवर दिया. ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो व्हाट विल यू डू हियर? यू विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 4. देखें यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है. ठीक है, तो जब आप 2 और 4 का एलसीएम लेते हो 2 and 4, तो दैट वुड बी इक्वल टू, करके दिखा दूँ आपको, एलसीएम वुड बी 4. ओके, तो पूरी इक्वेशन को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है. बट बिफोर दैट ये जो आपके पास मिक्स नंबर आ रहा है, फर्स्ट इसको चेंज कर लीजिए. x अपॉन 2 प्लस 49 equals 2 4s are 8 plus 1 9 upon 4x. ओके, अब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 4 से. 4 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 49 equals 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 4x. x कैंसिल हो गया है, सॉरी 4 कैंसिल हो गया, 2 2s are 4, दैट इज 2x equals 196, not equals, this is, we are going to add them. Okay, equals 9x. now solve this equation. क्या हो जाएगा ये आपके पास? 2x minus 9x equals 1 minus equals minus 196, that is minus 7x equals minus 196. ठीक है, now x equals minus minus will be cancelled. 196 upon 7, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 8s are, x is equal to 28. This is which you have supposed here. ठीक है, find the number, नंबर ही आपको मालूम करना था, so that is the value of the number. So 28 will be the required number. This is your answer. So this is question number 9. When a number is multiplied, when a number is multiplied by 4, यानी मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 के साथ. ठीक है, बिफोर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68 से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से पहले, फ्रॉम 68 का मतलब है 68 में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से पहले उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से. ठीक है, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज द सेम, सेम रिजल्ट आएगा यानी इक्वल लगेगा एज 3 times द सम ऑफ द नंबर एंड 4. यानी उसी नंबर के अंदर अगर ऐड कर दिया जाए 4 को. ओके, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? वी नीड टू मल्टीप्लाई द नंबर. अगर नंबर को हम x ले लेते हैं तो 4 को मल्टीप्लाई किया गया x से, द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4 बिफोर सब्ट्रैक्टिंग. सब्ट्रैक्ट करने से पहले, पहले उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, बाद में उसको सब्ट्रैक्ट किया गया है 68 में से, एंड द सम ऑफ द नंबर एंड 4, वो इक्वल है सम ऑफ द नंबर एंड
4 के, ओके। यानी अगर सम ले लिया जाए उस नंबर का, यानी x का और 4 का, तो उसके 3 टाइम्स के बराबर है, ओके। 3 टाइम्स, I will put 3 over there, okay. Now this is a complete equation to be solved to get the value of that number, find the number, okay. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -4x as it is, 68 minus 4x. First I will multiply 3 by x and then 3 by 4. 3 4s are 12. This is minus 4x minus 3x equals 12 minus 68, that is minus 7x, equals 56 of minus sign with minus sign, and x equals to 56 upon 7. 1s are 7, 8s are 56, x equals 8. So the value of x is 8. यानी 8 वो नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, फिर उसको 68 में से माइनस किया जाए, तो जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू, अगर आप उस नंबर को 4 में ऐड करें और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें. लेट्स चेक इट. 68 माइनस 4, इस तरह आप अपना आंसर को चेक कर सकते हैं. यू कैन डू इट इन ईच ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है. तमाम क्वेश्चन में आप ये काम करके देख सकते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. दिस इज द वेरिफिकेशन, ओके, वेरिफिकेशन और चेकिंग. तो ये आपका आ जाएगा 68 माइनस 32 इक्वल्स 12, 36 and what it would be 6, 3, 36 and 36, ओके. तो ये जो कहा गया था कि ये दोनों तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे. ऑब्टेन्ड इज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज द सेम एज, दोनों का रिजल्ट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ गया. इट मीन्स दैट योर आंसर इज करेक्ट. तो द नंबर is 8. Okay, so this is question number 10. We are going to start. A man is 6 times as old as his son. If the age of son is x, जो भी इसकी एज होगी उससे 6 टाइम्स उस बंदे की एज ज़्यादा है. It means that the age of the father will be equal to 3x. अगर सन की एज x है तो 3 टाइम्स ज़्यादा है उस बंदे की एज के, ठीक है. 20 years later, 20 साल के बाद, the man will be twice as old as his son. वो अपने बेटे से कितना ज़्यादा हो जाता है? ट्वाइस हो जाता है, ठीक है, यानी 2 टाइम्स हो जाता है. अब देखिए अभी जो एजेस हैं, लेट द एज ऑफ सन इज, लेट द age of son be x, okay. Then the age of father, then the age of father कितनी हो जाएगी? That is 3x, okay. और जब 20 years गुजर जाएं, 20 years के बाद, तो इसका मतलब ये है कि 20 years फादर की एज भी बढ़ जाएगी, ठीक है. 6 times, sorry, this is 6 times, put it 6 over there, okay. So this is 6 times, okay. तो जो भी एज थी 6x थी और उसमें 20 years अगर आप बढ़ा दो, ठीक है, 20 साल के बाद का मतलब है 20 years ऐड हो गए, और बच्चे की एज में भी, बेटे की एज में भी 20 years ऐड हो जाएंगे. लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि 20 years तो ऐड होंगे, लेकिन मैन की जो एज होगी वो ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है. एज ओल्ड एज, वो कितने बड़े हो जाएंगे बेटे से? ट्वाइस. तो यू विल मल्टीप्लाई द एज आफ्टर 20 years, द एज ऑफ सन बाय 2 टू गेट द एज ऑफ फादर आफ्टर 20 years, ओके. तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है. नाउ लेट्स गेट सॉल्व दिस इक्वेशन. दिस इज 6x प्लस 2x प्लस 40, मल्टीप्लाई कर दिया. 6x minus 2x equals 40 minus 20, that is 4x is equal to 20,
एंड x इज इक्वल टू 4 5 आर 20. तो दैट इज, मालूम क्या किया गया था, फाइंड द एज ऑफ द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न. जब उसका बेटा पैदा हुआ था उस वक्त उसकी एज क्या होगी. तो दैट इज x क्या चीज़ थी, द एज ऑफ सन बी x एज थी सन की. ठीक है, ये किसकी एज हो गई, एज ऑफ सन. ठीक है, और कब है ये एज ऑफ सन, आज से 20 ईयर्स पहले, यानी 20 ईयर्स अभी इसमें ऐड नहीं किए गए हैं. तो ये क्या है, एज ऑफ सन है. दिस इज x की वैल्यू आ गई. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एज ऑफ फादर, जब उसका बेटा पैदा हुआ था. ठीक है, वो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे. अगर ये उस वक्त एज है x इज इक्वल टू 5 ईयर्स, यानी जब बेटे की एज 5 ईयर्स है, जब बेटे की एज 5 ईयर्स है तो उस वक्त फादर की एज कितनी होगी. ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट 6x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 30 ईयर्स. ओके, ये कब हुई उसकी एज, जब बेटे की एज 5 ईयर्स थी. ठीक है, तो बेटे की एज 5 ईयर्स थी, फादर की एज 30 ईयर्स थी. अब जब वो बेटा पैदा हुआ था, इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त कितने ईयर्स का होगा. आप इसमें से 5 ईयर्स, अगर बाप की एज में से 5 ईयर्स आप फादर की एज में से माइनस कर दें, तो आप उस वक्त 5 साल पहले, यानी 30 से 5 ईयर्स बैक, वो जो उसका बेटा था वो उस वक्त पैदा हुआ था. ठीक है, सो यू नीड टू फाइंड आउट एज ऑफ फादर when son was born. ठीक है, 30 यानी फादर की एज में से 5 माइनस कर दीजिए, तो वो वाला वक्त आ जाएगा जब उसका बेटा पैदा हुआ था. ठीक है, तो दैट इज 25 years. That would be the age of the father when son was born. ठीक है. Now this is question number 14. The numerator of a fraction. We are talking about the numerator. Okay. जब आप एक fraction लिखते हो तो उसका एक numerator होता है और एक denominator होता है. Okay. The number which is situated up of this line, this is numerator, and down of this line, this is denominator. ठीक है, ये n है और ये d है. n for numerator, d for denominator. इन्होंने कहा द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन. 5 लेस देन मीन्स यू नीड टू सब्ट्रैक्ट. ओके, 5 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर जितना भी है उसमें से अगर आप 5 को लेस कर दें तो न्यूमरेटर बन जाता है. ठीक है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को x ले लूँ और उसमें से लेस कर दूँ 5, यानी 5 को माइनस कर दूँ, तो आपका न्यूमरेटर बन जाता है. ठीक है, to the numerator. If 1 is added to the numerator, अगर 1 को add कर दिया जाए numerator में, if I will add 1 in the numerator and to the denominator, और denominator में भी 1 को add कर दिया जाए, देखिए equation किस तरह बनती है. अगर दोनों में 1 को add कर दिया जाए, the new fraction is 2/3. This is thinking process on right hand side. ठीक है, equals जो नई आपकी fraction बनेगी वो है 2/3. ठीक है, तो यहाँ आपने इसको ऐसे बना लिया, x माइनस 5 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स 2/3. तो ये आपकी इक्वेशन बन गई. ठीक है, दिस इज़ योर थिंकिंग प्रोसेस. ये पहले आपने इसको कॉम्प्रिहेंड कर लेना है पूरी वर्ड प्रॉब्लम को. फाइंड द फ्रैक्शन, आपको वो फ्रैक्शन निकालना है जो इन द बिगिनिंग दैट वाज द फ्रैक्शन. क्या था फ्रैक्शन? फ्रैक्शन आपके पास ये था इन द बिगिनिंग कि आपका जितना भी डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर उससे 5 छोटा था. यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. ओके, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी हैं. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द क्वेश्चन. लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x. लेट मी राइट हियर, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन is x. Okay, then the numerator equals x minus 5. Okay, तो फ्रैक्शन क्या था? फ्रैक्शन x. So here fraction would be equal to, what is the numerator? Numerator is x minus 5
and the denominator is x. Okay, so you need to find out the value of x minus 5 upon x. Okay, अच्छा भैया अब इसको लिखेंगे कैसे? देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय पेन. ओके, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. अब हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? x माइनस 5 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, जो कि हम पहले ही बना चुके होते हैं. ठीक है, वैल्यू हमें x माइनस 5 अपॉन x1 की निकालनी है. दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. ठीक है, what it would be? x minus 5 plus 1 कितना हो गया? x minus 4, and this is x plus 1 equals 2 upon 3. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज 3 x minus 4 equals 2 x plus 1, that is equal to 3x minus 12 equals 2x plus 2. Okay, we need to find out the value of x first. 3x minus 2x equals 2 plus 12, that is 14, and x. Okay, x की वैल्यू आपके पास 14 आ गई, but we are interested in the value of x minus 5 upon x, which is equal to x की वैल्यू क्या है? 14 minus 5. ये वो फ्रैक्शन था. ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है. ठीक है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, लेट मी राइट लाइक दिस, 14 minus 5 upon 14, that is 9 upon 14. ठीक है, तो जो पूछा गया था फाइंड द फ्रैक्शन इन द बिगिनिंग, जो आपके पास फ्रैक्शन था वो क्या बनेगा? x 9 अपॉन 14. तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रैक्शन is 9 upon 14, and that's all for today.